अगला पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। टॉपिक है आपका जियोमॉर्फिक प्रोसेस। सो shall we start now? So you can see the screen, this slide, geomorphic process. It is a part of your subject geomorphology and geotectonics. This is the part of unit second, first topic. So first we introduce the index. The index is 1 point definition of geomorphic process. So in this part we discuss the definition of geomorphic process. Next is your types of geomorphic process, यानी कि कितने तरह के आपकी प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे. Then we discuss endogenetic process and their types, and last exogenetic process and their types. So here's your definition of geomorphic process. So basically the geomorphic process, it is about the formation and deformation of landforms. So geomorphic process is a formation and deformation of landforms on the surface of earth are each continuous process, because your earth surface is a continuous process, so which is due to the continuous influence of external and internal forces. तो इसमें क्या रहता है, कंटिन्यूस प्रोसेस होने के कारण इसमें रेगुलरली आपका क्या एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का इन्फ्लुएंस होता रहता है, जिसकी वजह से आपके जो भी लैंड फॉर्म्स हैं वो फॉर्मेट और डिफॉर्म होते रहते हैं. सो दैट्स व्हाई द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंड फॉर्म्स on the surface of the earth are a continuous process which is due to the continuous influence of external and internal forces. The internal and external forces causing stress and chemical action on the earth material and bringing about change in the configuration of the surface of the earth are known as geomorphic process. अब जितने भी आपके ये इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस लगते हैं, इनके वजह से क्या स्ट्रेसेस एंड केमिकल एक्शन होता है आपके अर्थ मटेरियल में और ब्रिंग अबाउट द सम चेंजेस ऑन कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस. दैट्स व्हाई वी से द फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ लैंडफॉर्म ऑन द सरफेस by which external or internal forces regularly and continuously influencing our earth surface. So now, और अगर हम कहना चाहें एक शब्द में, अगर हम कहना चाहें तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या प्रोसेस है, दैट द प्रोसेस इज अ आउटकम रेशियोज ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल फोर्सेस. ठीक है, बेसिकली क्या कह सकते हैं, the landscape या landforms are the outcome of the internal and the external forces. So external internal forces के outcome से जो भी आपका landform developed हो रहा है, that is a geomorphic processes. Okay, the process by which your landforms is deformed or formed. Okay, so now next your topic, types of geomorphic processes. So before that we going for types of geomorphic process. I will tell you about the one theory of concepts या आपकी एक assumptions आई है पेपर्स में, जिसमें कहा गया है कि हिमालय की जो भी माउंटेन रीजन्स है वो उसकी हाइट बढ़ती जा रही है और आपकी अरावली माउंटेन्स की हाइट क्या हो रही है, कम होती जा रही है. एक आपके लिए क्वेश्चन है जो कि आप बताइएगा कैसे, इस स्लाइड के एंड में हम इस पर डिस्कस करेंगे, तो इसको ध्यान में रखिएगा. ठीक है, तो आपकी ये जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस हैं. ये प्रोसेस आपकी दो तरह की प्रोसेस होती हैं, जैसा कि आप देख रहे होंगे. वन इज एंडोजेनिक एंड सेकंड इज एक्सोजेनेटिक process. The endogenetic process, the process is in interior of the earth, and the exogenetic process is the surface process. तो ये आपकी अर्थ सरफेस के ऊपर जो प्रोसेसेस हैं उनको एक्सोजेनेटिक कहा गया है, और एंडोजेनेटिक वो प्रोसेस जो आपकी अर्थ के इंटीरियर में चली आ रही हैं. सो बिफोर दैट वी से एक्सोजेनेटिक और एंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक, वी डिस्कस बट आस्क यू समथिंग. एंडोजेनेटिक में आपका कौन सी मेन फोर्सेस होती हैं? मेन फोर्स अगर हम बात करते हैं, डिफरेंट फोर्सेस हम देख रहे हैं,
बट मेन फोर्स की अगर हम बात करते हैं एंडोजेनेटिक में, आपकी जो मेन फोर्स जो होता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ में, द हीट इज अ मेन सोर्स ऑफ endogenetic forces या मेन फोर्स ऑफ द एंडोजेनेटिक प्रोसेस। एंड द एक्सोजेनेटिक में आपका सेम फीचर यानी कि सन। ओके, द सन इज द मेन force of exogenetic forces and endogenetic is a heat of interior heat of the earth. Okay, so now we discuss one by one so your endogenetic processes. So first we going for your you can say there, see there, the slow movement, sudden movements, and the vertical and horizontal. Discuss one by one to hear about these things. Next slide, that endogenetic process. The endogenetic process are those internal forces which derive their strength from the earth interior and play a crucial role in shaping the earth crust. So आप देख रहे होंगे एंडोजेनेटिक प्रोसेस क्या है, आर दोज इंटरनल फोर्सेस, यानी कि जो भी इंटरनल फोर्सेस आपके अर्थ के इंटीरियर में है, प्ले अ क्रूशियल रोल फॉर शेपिंग द अर्थ, यानी कि आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ में जो भी फोर्सेस आपके लगते हैं, उन फोर्सेस के कारण आपका जो अर्थ का क्रस्ट है वो क्या होता रहता है, शेप चेंज करता रहता है। लाइक माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस आपका दिख रहा है कॉन्टिनेंटल अर्थक्वेक की वजह से या वॉल्केनिक की वजह से आपके जो भी चेंजेस आपके अर्थ क्रस्ट पे आ रहे हैं, जो और डिफरेंट लैंडफॉर्म बन रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है द एंडोजेनेटिक फोर्सेस आर मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस, यानी कि आपका जो ये एंडोजेनेटिक फोर्सेस है आर द मेनली लैंड बिल्डिंग फोर्सेस। सो मेनली आपका क्या है, ये लैंड बिल्डिंग फोर्सेस है। ऑल्सो हम इसको क्या कह सकते हैं, इज द कंस्ट्रक्टिव फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं साथ में, इट इज अ कॉन्सेंट्रिक फोर्सेस या constructive forces also. Okay, that is also called a constructive forces. The energy emanating from within the earth is the main force behind endogenetic force. This energy is mostly generated by the radioactivity, rotational and tidal friction and the primordial heat from the origin of the earth. जैसा कि हमने कहा था कि आपका एंडोजेनेटिक क्या है, द मेन सोर्स ऑफ क्या आता है आपका, द मेन सोर्स या मेन फोर्स ऑफ द एंडोजेनेटिक फोर्सेस, इट इज हीट। सो जो भी आपका हीट जनरेट होता है आपके इंटीरियर ऑफ अर्थ से, वो रैपिडली क्या करता है, रोटेशनल और टाइडल फ्रिक्शन जनरेट करता है, जिसकी वजह से आपके वॉल्केनिक इरप्शंस, अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं और प्लेट्स क्या करती हैं, आपकी मूवमेंट करती हैं, जिसकी वजह से आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंडफॉर्म जनरेट हो रहे हैं। सो endogenetic forces are those the internal forces which derive their strength from the earth interior and play the crucial role in shaping the earth crust. Now the term types of endogenetic forces, आप देख रहे होंगे कि endogenetic forces क्या है, आपका स्लो मूवमेंट है, सडन मूवमेंट्स हैं। ठीक है, तो स्लो मूवमेंट्स को कहते हैं, हम क्या कह रहे हैं कि आपका एक जियोमॉर्फिक क्या है, जियो मीन्स आपका अर्थ और मॉर्फिक माने क्या होता है आपका द चेंजेस, यानी कि आपके लैंड फॉर्म में जो चेंजेस आ रहे हैं ड्यू टू द स्लो एंड सडन। तो डायस्टॉर्फिक आपका जो भी स्लो मूवमेंट्स थ्रू द स्लो मूवमेंट प्रोसेसेस द लैंड आर डेवलप, दैट इज कॉल्ड डायस्टॉर्फिज्म। डायस्टॉर्फिज्म अगर हम बात कर रहे हैं, डायस्टॉर्फिज्म में देखिएगा, डायस्टॉर्फिज्म में अगर हम बात कर रहे हैं आपका, इसमें आपके दो तरीके के हमने कहा है, दो तरीके का वर्टिकल मूवमेंट, और क्योंकि जैसे स्लो मूवमेंट है तो ये दो तरीके का मूवमेंट जनरेट करता है, दैट इज वर्टिकल एंड द हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल मूवमेंट अगर आपका जनरेट हो रहा है, यानी कि वर्टिकली आपके फोर्स अराइव्ड हो रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड अ इपियरोजेनिक या कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस, उसे हम कहते हैं इपियरोजेनिक और कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी रीजन्स में, माउंटेन्स में क्या होगा, वर्टिकल मूवमेंट होने लगेगा। तो वर्टिकल मूवमेंट्स आपका दो तरीके से होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में या डाउनवर्ड डायरेक्शन में। डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर कहीं पे लग रहा है तो यानी कि वहां सबडक्शन आपका उस पर्टिकुलर पार्ट्स में हो रहा है, अपवर्ड हो रहा है तो अपवर्ड में आपका इमर्जेंस हो रहा है। तो दो तरीके की टर्म्स आती हैं आपकी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग प्रोसेस में, दैट आर इमर्जन एंड सबमर्जन। तो सबमर्जन तब होगा जब डाउनवर्ड वर्टिकल मूवमेंट होगा और इमर्जेंस तब होगा जब आपका
अपवर्ड डायरेक्शन मूवमेंट होगी। नेक्स्ट आपका टर्म इसी में है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल या माउंटेन बिल्डिंग प्रोसेस दैट इज कॉल्ड ओरोजेनिक मूवमेंट या orogenic process. That is a process that is called a mountain building process. The mountain building process is depending on the horizontal forces. जब horizontal forces क्या होते हैं, जब आपकी प्लेट मूवमेंट आपकी राइट एंड लेफ्ट डायरेक्शन में या राइट टू के बीच के डायरेक्शन में आपकी कन्वर्स करती है, फोर्स ऑफ कॉम्प्रेशनल फोर्स लगेगा या टेंशनल फोर्स लगेगा। अगर कॉम्प्रेशन फोर्स लग रहा है तो आप देखते होंगे नीचे एग्जांपल में दिया, तो आपका रीजन बन रहा है फोल्ड माउंटेन। इसका गुड एग्जांपल आपका क्या है, हिमालय। हिमालय इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ फोल्डेड माउंटेन एंड द फोर्स अगर टेंशनली लग रहा है दैट इज फोल्ड माउंटेन्स। फोल्ड माउंटेन्स आपकी हैं रॉकीज माउंटेन्स, दैट आर द फोल्डेड माउंटेन। सो आपने देखा कि एंडोजेनेटिक प्रोसेस में आपका सडन जो भी आपकी स्लो मूवमेंट्स हुई, यानी कि धीरे धीरे जो मूवमेंट्स आपका अप्लाई हुआ वो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल हुआ। जब वर्टिकली हो रहा है तो दैट्स अ कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग कर रहा है, और जब हॉरिजॉन्टल मूवमेंट्स हो रहा है दैट्स अ माउंटेन बिल्डिंग कॉम्प्रेशनल और टेंशनल फोर्स के साथ। अगर ये मूवमेंट सडन हो जाए तो सडन में आपके दो तरीके के मूवमेंट आते हैं, जैसे कि अचानक से आपका वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है या अर्थक्वेक आता है, उसकी वजह से भी आपकी लैंड सरफेस का फॉर्मेशन चेंज होता है। तो दैट्स व्हाई द सडन मूवमेंट्स आर वॉल्केनिक एंड अर्थक्वेक एंड द स्लो मूवमेंट्स आर द इपियोरोजेनिक एंड ओरोजेनिक। ओके, सो द नेक्स्ट वी डिस्कस the exogenetic processes. Exogenetic processes, those the forces which derive their strength from the earth exterior. Endogenetic में interior था, then now earth exterior और are oriented with the earth atmosphere। और जो भी आपकी एक्सोजेनेटिक फोर्सेस है ये डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर पे, जहां जैसा एटमॉस्फेयर होगा वहां पे उस तरीके का इम्पैक्ट आपके अर्थ सरफेस पे पड़ता रहेगा। सो एक्सोजेनेटिक फोर्सेस आर दोज द फोर्सेस व्हिच डिराइव देयर स्ट्रेंथ फ्रॉम अर्थ exterior or the oriented with the earth atmosphere। एग्जांपल फोर्सेस जो भी आपके एजेंट्स इसमें वर्क करते हैं, जब हम फोर्स कह सकते हैं उनके, दैट आर विंड, waves and waters या glacier etc, that are the some agents of your exogenetic forces who transform the landform। example of exogenetic forces या processes that are weathering, erosion, deposition या mass wasting, that are the types of exogenetic processes। exogenetic forces are mainly a land wearing forces। आपके उसमें क्या करता है, लैंड इवोल्यूशन हो रहा था, लैंड डेवलप्ड हो रहे थे, बट यहाँ पे लैंड का वेयरिंग होता है, यहाँ का लैंड का इरप्शन या इरोजन होता है, जिसके वजह से उसको कहते हैं लैंड वेयरिंग फोर्सेस। सो नेक्स्ट स्लाइड यू जस्ट सी दैट टाइप्स ऑफ एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि कितने डिफरेंट टाइप्स की आपकी एक्सोजेनेटिक प्रोसेसेस हैं। सो हम बात करते हैं एक्सोजेनेटिक प्रोसेस क्या कर रहा है, दैट्स इंटीरियर, आपके इंटीरियर जो भी फोर्सेस है उनकी वजह से आपका लैंड का क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। इसको हम क्या आपका टर्म दिया था दैट पिछले में आपने देखा है, तो लैंड वेयरिंग। तो लैंड वेयरिंग बेसिकली क्या है, द लेवलिंग ऑफ अर्थ लैंड फॉर्म्स। आपका लैंड फॉर्म का जो भी है लेवल करना, लेवलिंग वेयरिंग होता है। यानी कि आपका अर्थ से एक माउंटेन था, माउंटेन बना, माउंटेन्स क्या हुआ, इरोड होके आपका कन्वर्ट हो गया प्लेनी प्लेन में, दैट इज द लैंड फॉर्म वेयरिंग या फिर लेवलिंग ऑफ द अर्थ लैंड फॉर्म। इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिन स्टेजेस में हम बात करते हैं द वेदरिंग, इरोजन, डिपोजिशन या ट्रांसपोर्टेशन या मास वेस्टिंग। तो वेदरिंग की अगर हम बात करते हैं तो वेदरिंग बेसिकली क्या है आपका, दैट इज द प्रोसेस ऑफ डेन्यूडेशन। सो डेन्यूडेशन इट इज अ कंबाइंड that is the process of breakdown of the material of earth surface by the exogenetic process या temperature, pressure, precipitation, उसके वजह से भी कोई भी आपका वेदरिंग हो सकता है। दैट इज, इसको हम अगर दूसरे शब्दों में समझें कि आपका वेदरिंग क्या चीज है, यानी कि आपके चला गया, वेदरिंग है क्या चीज। सो वेदरिंग बेसिकली आपका एक मूवमेंट है जो कि जिसमें कि आपका क्या हो रहा है, एक तो डीकम्पोजिशन, एक
डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन दो तरीके की प्रोसेस वेदरिंग में इन्वॉल्व होती है, डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन। डीकम्पोजिशन मीन्स अ केमिकली ब्रेकडाउन ऑफ अ रॉक मटेरियल या अर्थ मटेरियल, एंड द डिसइंटीग्रेशन मीन्स अ फिजिकली ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक। ओके, सो आपका पता चल गया कि वेदरिंग इज अ डीकम्पोजिशन एंड डिसइंटीग्रेशन ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स। तो एटमॉस्फेरिक एलिमेंट आपने पता ही है, आपका रिवर हो गया, ग्लेशियर्स हो गया, दीजा इन एलिमेंट्स की वजह से, या टेम्परेचर प्रेशर हम जिसको कहते हैं, टेम्परेचर प्रेसिपिटेशन फ्रॉस्ट एक्शन, दीज आर द एटमॉस्फेयर एलिमेंट। ड्यू टू द एटमॉस्फेयर, बाय द एटमॉस्फेरिक एलिमेंट्स द rock surface are changed for formation form of decomposition and disintegration. So decomposition means आपका chemically is change of breakdown of rock, and the physically breakdown of the rock, it is called disintegration. So weathering आपका तीन तरीके का weathering है, some physical weathering, next chemical weathering, and the last but the not लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल वेदरिंग। तो फिजिकली अगर आपका यानी कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक हो रहा है बाय द अनलोडिंग ऑफ एक्सपेंशन, यानी कि आपका अनलोडिंग हो गया, अचानक से आपका मटेरियल आया और वो ग्रेविटी की वजह से नीचे रिमूव कर गया, दैट अनलोडिंग। टेम्परेचर चेंजेस ऑफ एक्सपेंशन, अगर टेम्परेचर की वजह से कुछ चेंजेस आ गए रॉक्स में, दैट इज ऑल्सो अ फ्रीजिंग, थ्विंग या फ्रॉस्टिंग, इनकी वजह से। और वेदरिंग हम क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं वेदरिंग ओरिजिन पार्ट में, सो वी कैन नॉट डिस्कस अबाउट मोर मच अबाउट दैट। Also, the chemical weathering is also a solution, carbonization, hydrolysis, decomposition of organic material also. So that is the also a part. And the biological weathering is all the combined form of physical and chemicals. या कोई भी पेड़ आपका किसी रॉक के बीच में आ जाता है तो वो उसको भी ब्रेक डाउन करता चला जाता है ना। मास वेस्टिंग, मास वेस्टिंग आपका जो होता है दैट इज वी डिस्कस नाउ द मास वेस्टिंग। मास वेस्टिंग हो रहा है, स्लो मास वेस्टिंग या रैपिडली। दो तरीके से आपकी मास वेस्टिंग हो सकती है, एक तो अगर स्लोप क्या हो, आपका ज्यादा जेंटल स्लोप नहीं है या स्टीप स्लोप, जेंटल और स्टीप स्लोप की वजह से भी आपका मास वेस्ट हो रहा, मूवमेंट हो रही है। अगर जेंटल स्लोप है तो आपका मास क्या करेगा, स्लोली मूव डाउन करेगा, दैट इज अ क्रीप या सॉली फ्लक्चुएशन कहलाता है। धीरे धीरे आपका मटेरियल आपका मूवमेंट ले रहा है ग्रेविटेशनली। एंड रैपिड में आपका अर्थ फ्लो, मड फ्लो, डेब्रीज और एवलांचेज आपके आते हैं, जो लैंडस्लाइड आर दैट्स मास मूवमेंट्स। ऑल्सो वी डिस्कस इन द नेक्स्ट term next lecture about the mass wasting, the mass movement to there. So we describe one by one all the these one topics on that lecture. So now the erosion by, it is the motion. What is the difference between weathering एंड द इरोजन? वेदरिंग आपका एक ही जगह पे होती है, वहां पे कोई चेंज, वो कहीं पे मूव आउट नहीं करेगा। वहां पे आपका एक रॉक था, उस पे क्या हुआ, कुछ लीचिंग डाउन हुआ, वो हटा, वहां पे जो भी हटता रहा, लेकिन बट वो एक ही जगह पे रहेगा। बट इरोजन में क्या होता है, आपका मोशन होता है। वो मोशन किससे हो रहा है, रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स और वाटर, इनकी वजह से आपका कोई भी पर्टिकुलर पार्ट ब्रेक डाउन होता चला जा रहा है, दैट इज अ इरोजन। और वो इरोजन मटेरियल क्या होता है, कैरी अवे होता है बाय द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एजेंट्स की वजह से, जो डिफरेंट काइंड ऑफ एजेंट्स की वजह से कैरी आउट हो। सो द इरोजन इज अ रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव्स एंड करंट्स। तो आपका जो भी मोशंस होता है वो इरोजन में होगा, उस मोशन की वजह से आपका एक रॉक मटेरियल ट्रांसपोर्टेड होकर कहीं और चला जाता है और डिपॉजिट हो जाता है। डिपोजिशन इज अ पार्ट ऑल्सो रनिंग वाटर, ग्राउंड वाटर थ्रू द ग्लेशियर, वेव और विंड्स। आपका कोई भी मटेरियल कहीं से इरोड हुआ, वो इरोड होकर कहीं पे आपका एक्यूमुलेटेड होने लगा, जमा होने लगा, दैट इज कॉल्ड द डिपोजिशन। तो दीज आर द फोर टर्म्स ऑफ एक्सोजेनेटिक processes. So today's we discuss about your types of different geomorphic features to here. Now we just say that the term endogenetic and the exogenetic, basically what is the land formation, जो भी आपका land development हो रहा है, land का outcome जो भी आया after the do's the process, that वो एक रेशियो में होगा आपका, ठीक है। रेशियो ठीक है, रेशियो बिटवीन
the endogenetic and exogenetic forces. The ratio between endogenetic and exogenetic forces are responsible for the outcome of land forms. So ये बेसिक थिंग्स है आपको याद रखने के लिए, क्योंकि मैंने एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि हिमालय की हाइट बढ़ रही है और आपकी अरावली माउंटेन की हाइट घट रही है, इसके पीछे यही एक रीजन है, एंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक का रेशियो। कैसे ये देखते हैं। आप एक एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा स्क्रीन पे, एक ये माउंटेन है, ठीक है। इस माउंटेन्स का क्या हुआ, एक्सोजेनेटिक प्रोसेस, सॉरी आपको पेंट के थ्रू मैं समझाता हूँ। ठीक है, ये आपका पेन, ये कोई एक माउंटेन रीजन है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ आपका एक्सो जेनेटिक फोर्सेस की वजह से वेदरिंग और इरोजन होने लगा। ये मटेरियल, ये पार्ट्स आपका इरोड होकर यहाँ पे इसका जमा होने लगा, ठीक है। ये मटेरियल पार्ट्स आपके इरोजन के थ्रू या डिपोजिशन यहाँ पे डिपॉजिट हुआ, यहाँ से मटेरियल इरोड हुआ और ये भी मटेरियल इरोड होता गया और इधर जमा होता गया, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये जब यहाँ पे जमा होता गया, थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि इसका क्या हुआ, शेप आपका चेंज हुआ बेसिकली। और ये कुछ समय बाद, यानी कि ये प्रोसेस एकदम से तो नहीं होगी, सडन प्रोसेस तो नहीं होगी, क्योंकि स्लो मोशन है, डायस्टॉर्फिज्म है। तो ये क्या होता है, कुछ टाइम बाद ये लैंड की सरफेस अब देख रहे होंगे डायग्राम में, एक माउंटेन रीजन जिसमें कि आपका एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ने वर्क किया। पहले तो इसका अपलिफ्टमेंट हुआ, अपलिफ्टमेंट यानी कि आप समझ सकते हैं अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन कैसा हो रहा है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस की वजह से। और जैसे ही अपलिफ्टमेंट हुआ, इसमें एटमॉस्फेरिक एलिमेंट की वजह से, यानी कि टेम्परेचर, प्रिसिपिटेशन और वेदरिंग, इरोजन, जो भी फोर्सेस वर्क करते थे आपके एक्सोजेनेटिक, उसकी वजह से इसका वेदरिंग होने लगी और ये मटेरियल इरोड होकर नीचे अपना जमा हुआ। धीरे धीरे जमा होते होते क्या हुआ, इस माउंटेन की हाइट क्या हो गई, दैट आर लेस, और उसकी माउंटेन की हाइट कम होती चलेगी, और जो ये बाकी का बचा हुआ पार्ट था वो आपकी हाइट कम कर गया और यहाँ का हाइट आपका बढ़ गया। तो ये आपका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखने लगा, इस तरीके से आपका स्ट्रक्चर दिखने लगा। सो क्या होता है, आपका एक एक्सोजेनेटिक फोर्सेस से, इरोजन्स की वजह से क्या होता है, आपकी माउंटेन की हाइट भी डिफरेंट हो जाएगी। इसीलिए, क्योंकि कहाँ पे आपका एक हिमालयन रीजन में क्या हो रहा है, अपलिफ्टमेंट क्यों हो रहा है, क्यों उसकी हाइट बढ़ रही है, क्योंकि वहां पर कौन से वर्क सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं, एंडोजेनेटिक फोर्सेस वहां पे ज्यादा वर्क कर रहे हैं, इसलिए हिमालयन की हाइट क्या हो रही है, बढ़ रही है। और अरावली माउंटेन्स की हाइट कम क्यों हो रही है, क्योंकि वहां पर एक्सोजेनेटिक फोर्सेस ज्यादा वर्क कर रहे हैं। तो ये आपके उस क्वेश्चन का आंसर भी था। सो क्यों आपका ये चीज समझ में आ गई है आपको। तो आज का टॉपिक हम यही समाप्त करते हैं और आपको समझ में आया होगा, अच्छे से याद करते हो। अगर कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज कॉल कीजिएगा और मैसेज कीजिए, मेल कर दीजिए, जो भी आपको लगता है। तो आज का टॉपिक हम फिनिश करते हैं। ओके, गुड बाय।